Okay, so now let's welcome to the practical session of it's the practical session of MySQL of MySQL. Okay, we have seen the installation, why we are using MySQL, what are the benefits and other things. So MySQL, let me just tell you something about MySQL. First, MySQL. Okay, it's a RDBMS. RDBMS means relationship database management system. It stores all the data in form of tables. It stores all the data in the form of tables. We can have the multiple tables and multiple databases. Okay, one database can have this way, and we can have multiple database, db1, db2, db3, db4, all these things database can have. And one database, if I come here, okay, if this database, will just zoom here, this database, again this database can have table 1, table 2, table 3, and all these things. Okay, this is the flow. We can have multiple tables. One database, sorry, one MySQL can have multiple databases, and one database can have multiple tables. Okay, it is RDBMS. It stores the data in the form of tables. So basically, while learning any database, database learning, okay, database learning, you must understand four things. While learning any database, you must understand four things. They are known as, okay, wait a second. C R, okay, let's write capital C, CRUD. Okay, it is called as CRUD operation. First, you should know how to create things. Okay, how to create things. Next, you should know how to read the things. Means already existing data is there, right? I want to see the data. That is called reading. First, creating means inserting new data. I will just write, okay, I'll just make it small. Creating means inserting new data. Insert. Create means to insert new data. Read means to fetch the data. Okay. Fetch already existing data. U means updating the data which is already there. It is called updating. And the data which is not utilized, we will just delete the data. Okay, delete the data. This is called as CRUD operations. ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है. CRUD ऑपरेशन हमें आना चाहिए किसी भी डेटाबेस के लिए, नॉट ओनली फॉर MySQL, whether it be SQL, MongoDB, any database. You need to understand four operations, that is CRUD. Okay, as per database considerations, we have like we already usually in system we have 5 type of languages: DDL, okay, DML. They are nothing but they are also creating. DDL means data definition language. Okay, it is used for creating tables, updating structure of table. They are just doing the DDL definition language, means they are changing the structure of the table. टेबल में कॉलम ऐड करना है, कॉलम कम करना है, कॉलम को रिमूव करना है, कॉलम को नया बनाना है, फिर हटाना है, वो सब डीडीएल के नीचे आता है. डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. एक रिकॉर्ड पकड़ा, रिकॉर्ड में अपडेट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, रिकॉर्ड को नया इंसर्ट करना है, वो डीएमएल के अंदर आता है. ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बट हमें 4 चीजें सीखनी है. सो विल जस्ट स्टार्ट विद दी MySQL. वी हैव इंस्टॉल्ड MySQL, राइट? सो यू कैन सी MySQL इज इंस्टॉल्ड हियर. MySQL यहाँ पर हमें इंस्टॉल हो गया है. सो इस MySQL में हमें सबसे पहले क्लाइंट को ओपन करना है. MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. ओके, विल ओपन दिस. आई एम जस्ट चेंजिंग द फ्यू प्रॉपर्टीज फॉर द font size to be updated. Okay, let me just make it 20. Okay, so now my font size is increased a bit so that I believe you can see it now. Okay, we'll just switch this way. So हम यहाँ पर पहले, it will ask you about your password. You need to enter your password which you have created at the time of installation. So password I gave it root. Okay, what happened? Again launch. We'll just change the properties. Font 24. Okay, password I want to enter is ROOT. Okay, it's closing. Wait a second. Command line interface. Password is root.
Wow. So let us open the command line. We'll just change the property so that it looks little bit big on the screen, and we'll just adjust the screen size, and we'll just enter the password known as root. So I have opened the MySQL. It has opened the MySQL command prompt. So here we can just fire the queries. The language which we are going to use is SQL language. हमें कौन सी भाषा यूज करनी है? SQL भाषा यूज करनी है. SQL मतलब it stands for structured query language. अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज जस्ट ए बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश आती है सबको? आई थिंक इंग्लिश आती है. सो इंग्लिश से मिलेगा हमें. मतलब ये मेरा MySQL सर्वर है ना. MySQL सर्वर में मुझे जानना है कि कितने डेटाबेसेस है. हाउ मेनी डेटाबेसेस आई हैव. सो आई नीड टू जस्ट राइट शो डेटाबेसेस. कितने डेटाबेसेस है भाई? इन माय सिस्टम देयर आर 4 डेटाबेसेस. दे आर इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस. ये डेटाबेसेस बाय डिफॉल्ट मिलते हैं. जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट ये डेटाबेसेस मिलते हैं. ओके. सो मुझे मेरा खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है. क्या करना है? आई वांट टू क्रिएट माय डेटाबेस. सो लेट मी जस्ट राइट क्रिएट, मतलब बनाओ डेटाबेस. क्या बनाना है भाई? डेटाबेस बनाओ. क्या नाम से बनाना है? लेट अस टेक लर्न नाम से बना लेते हैं. हमें सीखना है ना, या फिर सीखो नाम से बनाते हैं? सीखो डेटाबेस बनाया. सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है. सेमीकोलन देंगे तो इट इज ए डिलिमिटर. यहां से एसक्यूएल क्वेरी एंड होती है. तो क्वेरी में क्या है? सिंपल है ना, क्रिएट डेटाबेस सीखो. ओके, लेट मी जस्ट हिट एंटर. व्हाट इट इज सेइंग? ओके, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक काम हो गया. सो हमें फिर से देखना पड़ेगा कि डेटाबेस बना नहीं बना. शो डेटाबेसेस अगेन. यहां पर देखिए अभी 5 मिल रहे हैं ना अभी अपने को. पहले 4 मिल रहे थे. इंफॉर्मेशन, MySQL, परफॉर्मेंस, सिस. ये देख, इंफॉर्मेशन मिला, MySQL मिला, सीखो एक और डेटाबेस मिल गया. ठीक है, मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया. मान लीजिए हमने इस डेटाबेस गलती से बना दिया, हमें नहीं बनाना था, तो मुझे डिलीट करना है डेटाबेस को. आई वांट टू डिलीट माय डेटाबेस. हाउ? डिलीट करने के लिए एक क्वेरी है ड्रॉप. मतलब डिलीट करना मतलब ड्रॉप करना है. मुझे नहीं चाहिए, आगे से ड्रॉप कर दो इसको. ड्रॉप किसको ड्रॉप करूं? डेटाबेस को. क्या नाम है डेटाबेस का? सीखो. ठीक है, डेटाबेस ड्रॉप. किसको ड्रॉप करना है भाई? डेटाबेस को. कौन सा डेटाबेस को? सीखो को. एंटर. अभी क्या बोला? ओके, ड्रॉप डेटाबेस सीखो. ओके, क्वेरी 0 रो अफेक्टेड. आई थिंक वी रोट करेक्ट स्पेलिंग. लेट अस जस्ट ट्राई. शो डेटाबेस राइट, देखने के लिए शो डेटाबेस. अपना सीखो डेटाबेस है यहां पर? नहीं है, गया. तो फिर से लेट अस क्रिएट अगेन. हमें फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें डेटाबेस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए. वी कैन वर्क ऑन दिस, बट ये बाय डिफॉल्ट है, हमें इनसे छेड़खानी नहीं करनी है. सो हम बनाते हैं अपना नया डेटाबेस. डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस. डेटाबेस का नाम अभी बनाते हैं लर्न. ओके, एंटर. हमने एक डेटाबेस बनाया लर्न नाम से. अभी मैं देखना चाहता हूं कि लर्न बना नहीं बना. तो हमें करना है शो डेटाबेसेस. डेटाबेसेस को शो किया, लर्न डेटाबेस आ गया. सो डेटाबेसेस तो बन गए. अभी मुझे डेटाबेस यूज करना है. क्या करना है? यूज करना है. मतलब मुझे इस डेटाबेस में कुछ काम करना है. तो सीधा काम है यूज लर्न, मतलब लर्न को यूज करो. एंटर. डेटाबेस चेंज्ड. ओके, अभी मुझे ये जानना है कि मेरे डेटाबेस में कितनी टेबल मौजूद है. अगर मेरे डेटाबेस में कुछ टेबल्स है तो मुझे वो टेबल्स देखनी है, क्या क्या टेबल्स है. तो मुझे लिखना है शो टेबल्स. आपको जानना है आपके डेटाबेस में कितने टेबल है. शो टेबल्स. एंटर. एम्प्टी सेट, मतलब कोई टेबल नहीं है फिलहाल, आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है. सो लेट अस क्रिएट ए टेबल. ओके, अभी तक हमने सीखा DDL कमांड्स, सॉरी क्रिएशन कमांड्स ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं, डेटाबेस में चेंज कैसे करते हैं. 3 कमांड सीख ली. शो डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस एंड ड्रॉप डेटाबेस. सो मुझे एक टेबल बनानी है. सो लेट अस क्रिएट वन टेबल. क्रिएट, क्या बनानी है भाई? टेबल. टेबल, टेबल का नाम क्या होना चाहिए? लेट अस टेक यूजर. मुझे यूजर नाम से एक टेबल चाहिए. उसमें क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए? आई टोल्ड यू राइट, एसक्यूएल मतलब रोज एंड कॉलम्स. सो आई नीड टू डिफाइन द कॉलम्स. कितने कॉलम चाहिए? एक तो होना चाहिए आईडी. ओके, कौन से टाइप की? इंटीजर टाइप की, मतलब नंबर होने चाहिए आईडी. दूसरा होना चाहिए अपना नेम. नेम होना चाहिए varchar. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग. इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग. सो यहाँ पर मुझे नेम अराउंड 30 से 40 कैरेक्टर का होता है, मतलब 30 से 40 अक्षर होते हैं एक नाम में.
तो 30 अक्षर ले लिया मैंने बस इसको क्लोज किया और सेमीकोलन डाला। मुझे क्या चाहिए भाई, एक यूजर नाम की टेबल चाहिए जिसमें एक आईडी हो और एक नाम हो, बस। तो मैं यहाँ पर एंटर मारा तो क्या बोलता है, ओके 0 रो अफेक्टेड। अभी मैं फिर से चलाता हूँ, शो टेबल्स, मुझे टेबल्स दिखाओ। मिल गई। कितनी टेबल है मेरे डेटाबेस में, एक टेबल है। टेबल का नाम क्या है, यूजर है। सो अभी मुझे ये जानना है कि टेबल में क्या क्या कॉलम्स है, मतलब मैंने बनाते टाइम क्या क्या दिया था, मुझे वो सीखना है। मतलब यहाँ आता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब टेबल, DESC, डिस्क्राइब टेबल का नाम कौन से को, यूजर को। एंटर। तो हमने बनाते टाइम क्या क्या दिया था, इसको एक आईडी दी थी जो इंटीजर टाइप की है, ओके। इसमें कोई की वो सब हमने नहीं दिया। एक नेम दिया था जो varchar है जिसकी लेंथ 30 है। मतलब मुझे टेबल बनाना इजी है, आई कैन क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देके जितने कॉलम्स चाहिए वो डाल सकता हूँ। नेक्स्ट, मुझे टेबल को शो करना है, मतलब शो टेबल। अभी नेक्स्ट, मुझे टेबल चाहिए नहीं, यूजर नाम से टेबल मेरे को मतलब ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप। किसको ड्रॉप करना है भाई, टेबल को ड्रॉप करना है। कौन से टेबल को, यूजर को। सिंपल है ना, बेसिक इंग्लिश। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, यूजर। इफ आई हिट एंटर, टेबल इज अगेन गॉन। सो इफ आई जस्ट अगेन वांट टू शो टेबल्स, देयर विल बी एम्प्टी सेट, कोई सेट नहीं मिलेगा हमें, एम्प्टी सेट। सो अगेन लेट अस क्रिएट वन मोर टेबल। एक टेबल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्रिएट बताएं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब क्या बनाता हूं, स्टूडेंट नाम से टेबल बनाता हूं, ठीक है। स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनाई। टेबल में क्या रखते हैं, फर्स्ट एक आईडी रखते हैं, लेट अस टेक वन आईडी। आईडी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, वेरी गुड। इंटीजर में भी अब आप चाहते हैं तो ऐसा दे सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इट इज 11, नॉट रिक्वायर्ड। सो इंटीजर मतलब कैन स्टूडेंट आईडी रिपीट, स्टूडेंट आईडी बार बार मिल सकता है। जैसे एक स्टूडेंट आया रोहन, उसको मैंने आईडी दी 1, दूसरा स्टूडेंट आया मोहन, उसको भी आईडी दी 1, पॉसिबल है, नहीं है ना। सो हम इसको करते हैं प्राइमरी की, ठीक है। मैंने इसको बनाया प्राइमरी की। मतलब प्राइमरी की का मतलब है कि यहां पर यूनिक वैल्यूज आएंगी, रिपीट नहीं हो सकते, रिपीट नहीं हो सकते तुम। प्राइमरी की बन गई। नेक्स्ट देता हूं मैं इनका नाम, ठीक है। नाम में होना चाहिए varchar, ठीक है। varchar मतलब स्ट्रिंग, कितने कैरेक्टर की, 50 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं उनकी सिटी, कि कौन से सिटी से हो भाई तुम, ठीक है। सिटी बनाई। सिटी चाहिए अभी मुझे, सिटी भी varchar में बनती है, ठीक है। varchar, varchar इधर भी लेते हैं, लेटेस्ट टेक 100, मतलब सिटी का नेम 100 कैरेक्टर्स का हो सकता है। एक और बनाते हैं हम, नेम हो गया, सिटी हो गया, varchar हो गया, फोन नंबर बनाए, लेटेस्ट टेक फोन नंबर। फोन बनाते हैं, ये भी varchar टाइप का ले लेता हूं मैं। इसमें भी आई थिंक 11 कैरेक्टर्स ले लेते हैं, अगर कंट्री कोड के साथ दिया तो +91 मिला के। इंट नहीं, मैं varchar ही ले रहा हूं, क्योंकि इंट मतलब इट विल स्टोर एज नंबर, आई डोंट वांट एज नंबर, नंबर कैन नॉट बी दिस काइंड, राइट। आई एम स्टोरिंग एट varchar, ओके। नेक्स्ट मुझे क्या बनाना है, और सिटी हो गया, कंट्री भी बना लेते हैं, चलो कौन से कंट्री से है भाई, ओके। कंट्री, अभी कंट्री क्या है, varchar है, फिर से varchar इसकी आई थिंक 30 कैरेक्टर्स रख देते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन देके एंटर। मतलब मेरी स्टूडेंट टेबल बन गई। चेक करना है, शो टेबल्स, टेबल्स दिखाइए। किस डेटाबेस में टेबल दिखा रहा है, लर्न डेटाबेस में, सभी डेटाबेस में नहीं। इट इज शोइंग द टेबल्स इन लर्न डेटाबेस। सो मुझे जानना है कि स्टूडेंट टेबल में क्या क्या दिया मैंने। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल, डिस्क्राइब टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल। सो यहाँ पर क्या क्या है अपने पास, आईडी है, नेम है, सिटी है, फोन है, कंट्री है, ठीक है, सब चीजें हैं अपने पास। सो मुझे क्या चाहिए, अभी स्टूडेंट कितने हैं, मतलब कोई भी रिकॉर्ड है स्टूडेंट में, मतलब स्टूडेंट में कोई भी डेटा नहीं है ना। सो मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, ओके। टेबल को अगर मेरे को स्टूडेंट को हटाना है बोलते क्या करना है, ड्रॉप टेबल, कौन सी टेबल हटानी है, स्टूडेंट। अगर मैंने इसको रन किया तो क्या होगा, स्टूडेंट टेबल मेरे डेटाबेस से निकल लेगी, मतलब डेटाबेस खाली हो जाएगा। मैंने डेटाबेस हटा दिया, यहाँ पर मैंने चेक किया, शो टेबल्स, इट विल बी एम्प्टी सेट अगेन, कुछ नहीं है। लेकिन मुझे फिर से क्रिएट करनी है, तो मैं फिर से क्रिएट कमांड लिखी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी int 10। अगर आप एरो की दबाएंगे तो पुरानी आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी, पुरानी कमांड्स। तो मैंने एंटर किया। अब कितने टेबल बन गए मेरे इसमें, एक टेबल बन गई। टेबल कौन सी है, स्टूडेंट। अगर मैं उसको
डिस्क्राइब करूं तो, स्टूडेंट को डिस्क्राइब करूं तो क्या क्या है उसमें मुझे मिलेगा। अभी क्या करना है, अपने पास टेबल क्रिएट हो गई, टेबल में डेटा डालना है। डेटा डालने के लिए इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है भाई, स्टूडेंट में इंसर्ट करना है। ओके, क्या क्या इंसर्ट करना है, आईडी इंसर्ट करनी है, नेम इंसर्ट करना है, सिटी इंसर्ट करनी है, फोन इंसर्ट करना है, और कंट्री इंसर्ट करनी है। ये सब कॉलम्स मुझे डालने हैं। इसमें क्या क्या डालनी है, वैल्यूज क्या डालनी है इनकी, इनकी वैल्यूज डालनी है भाई। ID 1 ले ले तू, नेक्स्ट नाम रोहन ले ले, नेक्स्ट सिटी हैदराबाद, HYD। ओके, छोटा लिखते हैं HYD दोनों, HYD। ओके, HYD। नेक्स्ट फोन नंबर, लेट इट बी एनी रैंडम कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट लेट्स राइट कंट्री, IND। ओके, मैंने एक इंसर्ट रिकॉर्ड लिखा। इफ आई इंसर्ट दिस, आई विल बी इंसर्टेड वन रिकॉर्ड। ओके क्वेरी, वन रो अफेक्टेड, मतलब मेरी स्टूडेंट टेबल में एक बंदे ने रिकॉर्ड डाल दिया। अभी मुझे देखना है कि क्या रिकॉर्ड मिला। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी, DQL और डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड ए सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट मतलब मुझे सेलेक्ट करना है, रीड करना है। आई वांट टू रीड द डेटा, कि मेरे टेबल में स्टूडेंट में है क्या क्या, मुझे जानना है, बोलते सेलेक्ट यूज करना है। सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सब कुछ, स्टार मतलब ओल्ड, वो ये है वाइल्ड कैरेक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाइल्ड कैरेक्टर। सब कुछ सेलेक्ट कर लेता है ये। कहां से सेलेक्ट करना है भाई, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से सब कुछ सेलेक्ट करके मुझे बता। एंटर मारा, तो इसने क्या किया, स्टूडेंट को रीड किया, उसमें बोला एक आईडी नेम कॉलम है, नेम है, सिटी है, फोन है, उसके अंदर क्या है, एक रोहन नाम का बंदा है जो हैदराबाद से है, उसका फोन नंबर ये है, इंडिया कंट्री है। ठीक है, अभी तक समझ में आया। चलो हम एक और बंदे को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के लिए मुझे, क्या मैं ये फिर से रोहन को इंसर्ट कर सकता हूं यहाँ पर, कैन आई इंसर्ट अगेन, इफ आई हिट एंटर, यू सी एरर, डुप्लीकेट एंट्री, प्राइमरी की कैन नॉट बी वन अगेन। मतलब मैंने बोला ना, प्राइमरी की मतलब एक की बार एक की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसको 2 मार के इंटर करूं तो हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। 2 मार के अगर मैं इसको यहाँ पर 2 लिख के इंसर्ट करूं तो हो जाएगा। लेट अस जस्ट चेंज द रिकॉर्ड। ये इंडिया से, लेट अस मेक इट फ्रॉम चाइना, नहीं तो पाकिस्तान से बनाएंगे, PAK, सिंपल है ना स्पेलिंग, दैट साइड। ओके, पाकिस्तान से इसका नंबर उल्टा है थोड़ा, 553 रहे कुछ भी। इट इज फ्रॉम इन पाकिस्तान, एनी सिटी नेम, let us write what is the capital city of Pakistan, capital, yes, Karachi, maybe. He is from Karachi, name is, let us take Abdul. Okay, TMKOC, we need to update this ID is 23. I can take my wish IDs. If I just hit enter, one more row inserted. So if I just want to check what are the rows, so select star from the student. I got 2 name. Let us insert few more records. Let us insert few more records. It is from India. Now Rohan. Let us insert Bablu from Hyderabad. ID is, let us take 5. Okay. He is from India. Okay. Insert. Again, one more inserting. Let us insert from different city. BNG. Okay. BNG मतलब Bangalore. And let us insert some record. Okay. We insert one record. Let us take 90, an ID, and enter. We'll insert one more record from different country. Okay. City is Bangalore. Just I am changing the, I will just update this few more records. Let us take Mohan, Rohan and Mohan. ID can be 90. No, it should not be 90. It should be 99. Any IDs I can change. Okay. I am just updating the records. India, BNG, Ramu, ID can be
103. Okay, one more record we can insert. ये सभी we are updating the records, right? We are not updating, we are inserting the records. Okay, ID can be like 400. It's like Jubair from Hyderabad and India. Number, let us update something. Enter. So now, how many students I have inserted? I don't know. Let us just check out once. Select star from student. Enter. I have inserted around this many records. Okay. Okay. This is called insertion of records. Okay. This is called insertion of records. So let us see. सब इंसर्ट हो गया यहाँ पर. अभी मुझे क्या चाहिए? यह है एक तरीका इंसर्ट करने का. दूसरा तरीका है we can directly give values. We can just write, this is one way, right? Insert into student, you need to specify the columns, you need to give the values. Another one way is insert into students में insert करो, directly values लिखो और values लिखते जाओ. यहाँ पर मुझे एक आईडी चाहिए, जैसे कि 300 नाम की एक आईडी है, उसमें अगला क्या है? नाम लेट अस टेक राजकुमार. ठीक है, नाम ले लिया. नेक्स्ट सिटी है, सिटी इज हैदराबाद, बैंगलोर, कराची. लेट अस टेक वन मोर, दिल्ली. ठीक है, यहाँ पर सिटी दिल्ली ले ली. यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर चाहिए मेरे को, मोबाइल नंबर. लेट अस टेक समथिंग. नेक्स्ट कंट्री इज IND. ओके, एंटर. तो दोनों तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर कॉलम नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि मैं कॉलम नंबर स्विच कर सकता हूँ. सिटी पहले लिख के फोन बाद में लिख सकता हूँ, कैसे भी, मेरी मर्जी. ठीक है, यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली फुल कॉलम्स देने होंगे, जितने कॉलम्स यहाँ पर पूछे गए, आईडी, नेम, पूरे कॉलम्स देने. यहाँ पर अगर मैं किसी कॉलम को मिस भी कर दूं तो इट विल बी ओके, राइट? दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट मेथड, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेथड. इसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं कि आपने पहले स्पेसिफाई किया एक्सप्लिसिटली. यहाँ पर बोलते हैं ओके, जैसा दिया है वैसा मिला. ठीक है, ये हो गया इंसर्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स. ठीक है, मान लीजिए मुझे कंट्री है, कंट्री के बाद एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मुझे टेबल को अपडेट करना है. आई वांट टू ऐड वन मोर कॉलम, आई वांट टू ऐड वन मोर कॉलम. सो लेट अस सी कॉलम कैसे ऐड करें. ऑल्टर, मतलब टेबल को बदलना है. किसको बदलूं भाई? टेबल को बदल. ऑल्टर टेबल. कौन से टेबल को बदलना है? स्टूडेंट को बदलना है. ओके, क्या करना है, क्या बदलना है इसमें? ऐड करना है. क्या ऐड करना है? कॉलम ऐड करना है. क्या नाम से कॉलम ऐड करें? ईमेल. ठीक है, ओके. ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम 1. ओके, वी नीड टू डिफाइन विच डेटा टाइप, राइट? ईमेल ऐड करनी है. कौन सा डेटा टाइप ये है? वैरकर ना, वैरकर 10. ओके, इट हैज सेन रिकॉर्ड ओके, जीरो अफेक्टेड. अब मैं DESC टेबल करूं तो DESC स्टूडेंट टेबल मतलब स्टूडेंट ना. स्टूडेंट में क्या क्या मेरे पास? ईमेल भी आ गया, अभी अपडेट हो गया. ओके, सो मुझे अभी ईमेल चेक करना है. सो लेट अस जस्ट चेक ईमेल कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम. अगर मैं करता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ईमेल की जगह पे क्या मिलेगा हमें? नल मिलेगा, क्योंकि कोई ईमेल हमने इंसर्ट किया ही नहीं था. सो हम क्या करते हैं, ईमेल अपडेट कर देते हैं सभी का. मैं सभी का एक ही ईमेल डाल देता हूं बाय डिफॉल्ट ईमेल. कैसे डालना है? सब रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है. क्या करना है? अपडेट करना है. सो मैंने लिखा अपडेट. किसको? स्टूडेंट को. किसको करना है अपडेट? स्टूडेंट को करो. सेट करो. किसको सेट करना है? मतलब कोई एक कॉलम सेट करना है मुझे. ईमेल सेट करनी है, इज इक्वल टू ईमेल होनी चाहिए डिफॉल्ट @gmail.com. ठीक है, ऐसी वाली मुझे चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेगी क्योंकि वैर का 10 ही है. D @gmail काइंड ऑफ थिंग.
10 characters I have limited, right? See, you can see I have added only 10 characters. So यहाँ पर 10 characters हो जाएंगे approximately. ईमेल सेट करनी है. अगर मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन ना दूं तो बाय डिफॉल्ट सबकी ईमेल d@gmail हो जाएगी. एंटर. ओके ओके, टू लॉन्ग, डेटा इज टू लॉन्ग, मीन्स ये 10 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया. सो हमें क्या करनी है, ईमेल की थोड़ी सी इसको कम कर देते हैं. ये ईमेल नहीं होनी चाहिए थी वैसे. ओके, d@gm. ओके, एंटर. आई विल जस्ट राइट एंटर. व्हाट इट इज सेइंग, 8 रो मैच्ड 8 रो चेंज्ड. ओके, मेरे टोटल इसमें कितने हैं, 8 रोज है ना पूरे सेट में. सो 8 की 8 इसने बदल दी. सर बदल दी बोल तो कैसे, लेट अस सी. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट से पूरा चेक करना है मुझे. पूरी ईमेल d@gmail हो गई ना. अभी मुझे मान ले पूरा अपडेट नहीं करना मुझे, कि बबलू का नाम बदलना है. ये नाम गलती से रॉन्ग हो गया, बबलू, इसका पूरा नाम था बबलू कुमार. सो यहाँ पर गलती से नाम आ गया, तो हमें क्या करना है, नाम को अपडेट करना है. आई एम अपडेटिंग द रिकॉर्ड. रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करना है, सीधा लिखो अपडेट करो. किसको, स्टूडेंट को. क्या सेट करना है, नाम. नाम को सेट करना है क्या, बबलू कुमार बाम्बल, ये नाम ऐड करना है. अगर मैं इसको अभी एंटर मार दूं तो सभी का नाम, ये कमांड का मतलब समझो आप. इसमें क्या लिखा है, सीधा अपडेट कर दो भाई. ठीक है, किसको अपडेट करूं, स्टूडेंट को अपडेट कर. क्या सेट करना है, नाम. नाम को क्या सेट करना है, बबलू कुमार बाम्बल. ठीक है, एंटर. सभी का नाम बबलू कुमार बाम्बल हो जाएगा लॉजिकली. बट मुझे क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए जिसकी आईडी 5 हो. मुझे लिखना है वेयर, जबकि आईडी इक्वल टू 5. मतलब उसी बंदे का नाम चेंज करो जिसकी आईडी 5 हो. एंटर. क्या बोला इसने, रो 1 मैच चेंज रो 1. ओके, तो यहां पर अभी अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा नाम अपडेट हो गया. ठीक है, यहां पर नाम अपडेट हो गया. सो अगर तुम चाहते हो कि मान लीजिए जो भी पाकिस्तान से बच्चा है उनकी आईडी यहां पर d@gm के बजाय e@gm हो जाए, या फिर p@gm हो जाए, तो मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है. ओके, कैसे अपडेट करना है, लेट अस राइट अपडेट. अपडेट करो. किसको अपडेट करो, स्टूडेंट को. क्या चेंज करना है, सेट करो. क्या सेट करना है हमें, ईमेल सेट करनी है. ईमेल सेट करनी है. क्या सेट करनी है, ईमेल पे जगह पे क्या होना चाहिए, p@gm होनी चाहिए. किसकी, सबकी. अगर ऐसा करके मैं एंटर मारूं तो सबकी p@gmail हो जाएगी, नहीं चाहिए. किसकी चाहिए, वेयर, मतलब किसकी बदलनी है, जिसकी भी कंट्री इक्वल टू PAK हो, मतलब पाकिस्तान जिसकी कंट्री है उनकी ईमेल आईडी को अपडेट कर दो. इसने क्या बोला, 2 रो मैच हुए, 2 रोज को इसने चेंज कर दिया. ठीक है, अभी हम वेरीफाई कैसे करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. यहां पर चेक कर सकते हो जिनकी कंट्री पाकिस्तान है उनका ईमेल मैंने p@gm कर दिया. ओके, दिस इज कॉल्ड अपडेट. कुछ भी दे सकते हैं, कंट्री मान सकते हो, फोन नंबर से मैच कर सकते हो, सिटी से मैच कर सकते हो, नेम से मैच, सब कुछ चलेगा. ओके, okay, now let us try to rename this table. If I just write show tables, show tables, क्या क्या टेबल्स मिलेंगे अपने पास, स्टूडेंट्स टेबल मिलेंगे. एक स्टूडेंट की टेबल है अपने पास. अगर मुझे टेबल का नाम चेंज करना है, अब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नाम से चेंज करना है, मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स करना है. तो मुझे क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल. टेबल का नाम क्या है भाई, स्टूडेंट. स्टूडेंट को ऑल्टर करो. इसको क्या करना है, रीनेम करना है मुझे, रीनेम टू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स नाम से रीनेम करना है. एंटर. अभी मैं अगर शो टेबल्स करूं, स्टूडेंट नाम की कोई टेबल नहीं है मेरे पास, स्टूडेंट्स नाम से टेबल है. ओके, तो यहां पर अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नहीं कर सकता, एरर देगा, बोलेगा कि स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है ही नहीं, आप कहां से मंगा रहे हो भाई. अब स्टूडेंट नाम की टेबल को चेंज करके क्या हो गई, स्टूडेंट्स हो चुकी है. सो इसको बोलते हैं रीनेम करना. टेबल का नाम बदलना मतलब आल्टर टेबल. आल्टर करना है, टेबल को करना है, कौन से टेबल को करना है, स्टूडेंट को. रीनेम करना है किससे, दूसरा नाम से. ठीक है, ये है इन सबको रीनेम करने की वो. अभी मान लो मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना है. मैं नहीं चाहता कि टेबल में एक रिकॉर्ड रहे, तो मुझे लिखना है सिर्फ डिलीट
हाँ भाई डिलीट करो, कहां से? फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम कौन से टेबल से? स्टूडेंट्स से, STUDENTS, स्टूडेंट से डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है बताओ, बोलो बोलो बोलो। वेयर, वेयर कंडीशन लगा के इज इक्वल टू, अगर मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स लिख के इसको एंटर मारा, सोचो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता अभी के लिए, तो मुझे एक स्टूडेंट की आईडी देनी पड़ेगी। वेयर आईडी इक्वल टू, लेट अस राइट 103। 103 किसकी आईडी है? रामू की आईडी है। मतलब अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो रामू यहां से चला जाएगा। टोटल मेरे इसमें सेट में कितने रिकॉर्ड्स है? देयर आर 8 रिकॉर्ड्स। इफ यू वांट टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिकॉर्ड है पूरे। 8 रिकॉर्ड में से मैं बोल रहा हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर तुमने इस क्वेरी को रन किया तो सब डिलीट हो जाएंगे, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, हमें फिर से इंसर्ट दबाना पड़ेगा। बट मुझे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स करना है। क्या डिलीट करना है? जिसकी भी आईडी 103 हो उसको डिलीट कर दो। ठीक है, सिंपल इंग्लिश राइट, एंटर। क्या बोला इसने? क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो बदल दी गई या फिर हटा दी गई। अब यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स मारो, 7 रिकॉर्ड्स इन सेट, राइट, 7 रिकॉर्ड्स आ गए अभी, मतलब एक रो डिलीट हो गई। ये है क्रिएटिंग ए टेबल, अपडेटिंग ए टेबल, डिलीटिंग ए टेबल, रीनेमिंग ए टेबल। पूरे 4 ऑपरेशन हो गए, क्रेड ऑपरेशन यहां पर कंप्लीट हो गए। सो अभी सेलेक्ट ऑपरेशन है। सेलेक्ट ऑपरेशन मैंने तुमको बोला ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? STUDENT, स्टूडेंट, एंटर। ओके, स्टूडेंट नाम से कोई टेबल ही नहीं है, स्टूडेंट्स लिखना है। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है। किसी ने मुझे पूछा ओके सर आपके पास बैंगलोर से कितने स्टूडेंट्स है, मुझे ओनली बैंगलोर से मिलने वाले स्टूडेंट्स बताओ। ओके, क्वेश्चन क्या है कि बैंगलोर से आने वाले स्टूडेंट बताइए, सिटी बैंगलोर होनी चाहिए उनकी बस। तो यहाँ पर सिटी बैंगलोर वाले एक है, दो है, दो बैंगलोर के, मतलब साइनी एंड मोहन आर फ्रॉम बैंगलोर। मुझे ये रिकॉर्ड्स में बताना है, मतलब पूछना है, डेटाबेस से पूछना है। कैसे पूछूंगा? सेलेक्ट स्टार, सबको सेलेक्ट करो, फ्रॉम स्टूडेंट्स। मतलब अगर इस क्वेरी को रन किया गया पूरे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए? कंडीशन के साथ चाहिए। कंडीशन मतलब वेयर, जबकि, हिंदी में जबकि बोलते हैं, जबकि सबको सेलेक्ट करो, जबकि जिसकी सिटी इज इक्वल टू BNG हो, सिटी जिसकी बैंगलोर हो उन सबको सेलेक्ट कर दो, एंटर। और सेमीकोलन लगाना भूल गए तो याद दिलाएं। ओके, सिटी जिनकी बैंगलोर हो, दो जनों की सिटी बैंगलोर है, ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर 1 2, दोनों की सिटी बैंगलोर है। ऑल दो कंट्री डिफरेंट है बट सिटी बैंगलोर है। जो तुमने पूछा वो मिल गया ना? मतलब मुझे क्या चाहिए था? ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी सिटी बैंगलोर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी ईमेल आईडी D@GM हो। कैसे लिखना है बताओ? आई नीड टू राइट सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ईमेल, ईमेल आईडी, ईमेल, ईमेल इक्वल टू डबल कोट्स, क्या है भाई ईमेल? D@GM, सेमीकोलन डाल के एंटर। सो भाई आपके पास टोटल 5 स्टूडेंट है, ये सब उन स्टूडेंट्स के नाम है जिनकी आईडी D@GM है। ओके, ये क्लियर है अभी तक? आई बिलीव इट इज क्लियर राइट। सो स्टार लिखने से क्या होता है कि पूरे कॉलम आते हैं, इसके पूरे कॉलम हमें मिलते हैं। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ नाम और कंट्री से मतलब है, मुझे ईमेल सिटी इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरी मैनेजमेंट बोल रही है मुझे सिर्फ नाम दे और कौन से देश से है वो बताना है। और कैसे बताना है? नाम और कंट्री चाहिए। स्टूडेंट में जितने भी मतलब बंदे, नाम दे दे उनके और कंट्रीज दे दे बस। तो मुझे क्या करना है? सेलेक्ट, अब स्टार नहीं कर सकता क्योंकि सभी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नाम चाहिए, नाम मांग लो, कॉमा दे दो। और क्या चाहिए भाई तेरे को? कंट्री चाहिए। यू नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स, कॉलम नेम्स यहाँ पर दो। और कहां से चाहिए भाई? फ्रॉम स्टूडेंट से चाहिए, एंटर। हमें क्या मिला अभी? नाम मिली और कंट्री मिली। रोहन है इंडिया से, बबलू कुमार है इंडिया से, अब्दुल है पाकिस्तान से, साइनी है इंडिया से। अभी मुझे पूरे कंट्रीज मिल गए। ठीक है, अभी क्लियर है? सो मुझे अभी क्या चाहिए? मुझे
नेक्स्ट टाइम चाहिए मुझे नाम और ईमेल आईडी चाहिए विद कंट्री विद फोन। कैसे करना है? नाम चाहिए, कंट्री चाहिए और फोन नंबर चाहिए। सेलेक्ट नेम कॉमा कंट्री कॉमा फोन। कहां से? फ्रॉम स्टूडेंट्स। एंटर। तो मुझे मिले नाम, कंट्री और फोन मिले। अभी मैं अगर पूछूं मुझे नाम, कंट्री और फोन चाहिए जो जो भी पाकिस्तान से है उन लोगों के सिर्फ, बताओ कैसे करना है? सेलेक्ट नेम कंट्री कॉमा फोन फ्रॉम स्टूडेंट्स STUDENTS वेयर, जहां, जबकि कंट्री COUNTRY कंट्री इक्वल टू PAK। मतलब मुझे क्या क्या चाहिए? नाम, कंट्री और फोन मिलेगा जिनकी कंट्री पाकिस्तान है। मिल गए? दो बच्चे हैं जिनकी कंट्री पाकिस्तान है और नाम ये सब मिल गए। ठीक है। सो ये है वेयर क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं? वेयर क्लॉज बोलते हैं। ठीक है। अब मेरी मैनेजमेंट क्या बोल रही है, भाई तूने यहाँ पर नाम लिख दिया, यहाँ पर कंट्री लिख दिया, यहाँ पर फोन लिख दिया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए यहाँ पर यूजर नेम चाहिए, यहाँ पर देश चाहिए, यहाँ पर फोन नंबर चाहिए। हमें शो करते टाइम क्या करना है कि इनका नाम बदलना है, कॉलम्स का नाम बदलना है। ये कॉलम्स है ना ऊपर वाले, मेरे क्लाइंट क्या बोल रहा है, यहाँ पर नाम नहीं चाहिए, यूजर नेम कर दे इसको, और कंट्री की जगह पे देश कर दे या फिर कंट्री नेम कर दे, फोन की जगह पे फोन नंबर कर दे। मुझे क्या करना है, इन कॉलम्स के नाम बदलने हैं। क्या करने हैं? नाम बदलने हैं। कैसे बदलेंगे? सेलेक्ट नाम नेम, ये ओरिजिनल नेम है, इसको कैसे सेलेक्ट करो? एज। एज मतलब एलियस नेम बोलते हैं इसको, एलियस नेम। जैसे बोलते हैं ना घर का दूसरा नाम, एक बंदे का नाम है घर में और किस नाम से बुलाते हैं, बंदा वही है, नाम अलग है, तो यहाँ पर सिर्फ नाम बदल रहा हूं मैं, नाम बदल रहा हूँ यूजर नेम। ठीक है। कॉमा। अब नाम जो कॉलम में डिस्प्ले होगा वो यूजर नेम डिस्प्ले होगा। ओरिजिनली नेम लेके आएगा लेकिन यूजर नेम डिस्प्ले होगा। यहाँ पर दूसरा क्या चाहिए भाई? कंट्री। एज कंट्री को कैसे दिखाना है भाई? कंट्री नेम मान लो या फिर कैपिटल कंट्री कर लो, कैसे भी, कंट्री नेम कॉमा। अभी क्या है? फोन। फोन ओरिजिनल है, एज इसको कैसे चाहिए? फोन नंबर ले लो भाई तुम, फोन नंबर NUMBER फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है। स्टूडेंट से मुझे ये सब चाहिए। अब देखो, नेम कंट्री और वो था, यहां पर बदल गया, यूजर नेम आ गया, कंट्री नेम आ गया, फोन नंबर आ गया। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एलियास नेम। मतलब ये नाम है, इसका एक और दूसरा नाम, ये कंट्री है, इसको एक और दूसरा नाम, ये है फोन, इसका एक और दूसरा नाम। ओके। इन सबको क्या बोलते हैं? एलियास नेम्स बोलते हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे क्या चाहिए? नाम और कंट्री चाहिए। मुझे क्या चाहिए अभी? नाम और कंट्री चाहिए। बताइए, सिंपल। सेलेक्ट नेम कॉमा कंट्री, कहां से? फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, मिल गए। अभी मुझे क्या चाहिए? ओनली कंट्री चाहिए, सिंपल। सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम स्टूडेंट्स। 7 रिकॉर्ड दिए, बट मेरी कंपनी क्या बोल रही है, मुझे सिर्फ वो कंट्री बताओ जिस 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 देश से हमारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। मतलब इंडिया अगर 10 बार आ रही है तो मुझे एक ही बार दिखाना है, पाकिस्तान अगर 100 बार आ रहा है तो भी एक ही बार दिखाना है। मुझे ओनली यूनिक कंट्रीज चाहिए। क्या चाहिए? यूनिक कंट्रीज। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे इंस्टीट्यूट में अगर 200 बच्चे हैं तो 200 कंट्रीज की लिस्ट दो। बच्चे दो ही कंट्रीज से है तो दो कंट्रीज के सिर्फ नाम बता दो। उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट क्लास। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक। क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट क्लास यूज करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट क्लास। डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड मतलब यूनिक रिकॉर्ड। अभी मैं लिखता हूं सेलेक्ट। क्या करना है? हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है। क्या सेलेक्ट करना है भाई? कंट्री को सेलेक्ट करना है। कहां से? फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या मिलेगा? पूरी कंट्रीज मिल जाएंगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिस्टिंक्ट कंट्री। यहां पर मैंने एक फंक्शन लिखा, डिस्टिंक्ट। ओके। ब्रैकेट ऑन की और यहां पर आके ब्रैकेट ऑफ। मतलब पूरी कंट्री सेलेक्ट करो, उसमें से जो डिस्टिंक्ट या फिर यूनिक कंट्रीज है वो मुझे दे दो। एंटर। ओके। डिस्टिंक्ट स्पेलिंग रॉन्ग है शायद। ओके। स्टूडेंट नहीं है यहां पर, इट्स ए स्टूडेंट्स। वी नीड टू रिमेंबर दिस। एंटर। इंडिया एंड पाकिस्तान दो ही देशों से मेरे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स है ना। सो अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि आई नीड स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम, ओके, आई नीड द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, मुझे अलग अलग सिटीज के स्टूडेंट्स दो। कितनी सिटीज है मेरे पास वो बताओ। कैसे? जैसे अभी मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट्स। यहाँ पर मुझे तीन सिटीज है ना, हैदराबाद है, कराची है, बैंगलोर है। मुझे कितनी सिटीज से स्टूडेंट है? अभी तो ये रिकॉर्ड ओनली 7 है, इसलिए इजी है देखने को। अगर ये 7,000 होते, उसमें से मैं पूछता कि मुझे कितनी सिटीज से स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे, कैसे बताते तुम? ऐसे बताना। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, मतलब यूनिक। क्या यूनिक चाहिए? सिटी। कहां से भाई? फ्रॉम स्टूडेंट्स। काम हो गया। कंपनी की रिक्वायरमेंट डन। मेरे में कौन से? दिल्ली है, 4 है, मैं 3 सोच रहा था। कितने अलग अलग सिटीज से अपने पास स्टूडेंट्स है? 4 सिटीज से। उन सिटीज के नाम है हैदराबाद, कराची, बैंगलोर एंड दिल्ली। ठीक है, इनको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट ऑपरेटर के बाद हमें मिलता है लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स किया। अभी मुझे कुछ और चाहिए। अभी तक मैंने पूछा ना कि कौन सी सिटी है, कौन सा ईमेल है, एक चीज पूछी थी। अभी मुझे ये चाहिए कि मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो बैंगलोर की सिटी है और पाकिस्तान कंट्री है। सवाल समझ में आया? जिनकी सिटी तो बैंगलोर है, कंट्री पाकिस्तान होनी चाहिए। बैंगलोर है, कंट्री इंडिया है, नहीं चलेगा। सिटी हैदराबाद है, कंट्री इंडिया, नहीं चलेगा। सिटी क्या हो? बैंगलोर हो। कंट्री क्या हो? पाकिस्तान हो। 2 कंडीशन मिल गई। चलो लिखते हैं। मुझे क्या चाहिए? सेलेक्ट स्टार, सब कुछ चाहिए उसके बारे में। कहां से भाई? फ्रॉम स्टूडेंट्स। वेयर सिटी इक्वल टू BNG, बैंगलोर। कॉमा नहीं लिख सकते यहां पर, कॉमा नहीं चलेगा। यहां पर लिखना पड़ेगा एंड और। ठीक है, और क्या चाहिए? कंट्री इक्वल टू पाक। ठीक है, अभी क्या बोला है मैंने बोला सभी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करो जिसकी सिटी बैंगलोर हो और कंट्री पाकिस्तान हो। एंटर। भाई 99 आईडी का एक ही बंदा है जिसकी सिटी बैंगलोर है, कंट्री पाकिस्तान है, और किसी की भी है नहीं है। सो इसको बोलते हैं ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड और आई थिंक पाइथन और में पढ़ा होगा तुमने। एंड मतलब दोनों करेक्ट होंगे तभी आउटपुट आएगा। अगर सिटी बैंगलोर है, कंट्री पाकिस्तान हो ना हो, इससे इससे फर्क पड़ता है। अगर कंट्री पाकिस्तान हुई तभी बंदा आएगा। यह है एंड ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं पूछूं सिटी हैदराबाद, सिटी हैदराबाद और कंट्री इंडिया, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, ऐसा नहीं चाहिए। लेट अस टेक एनीथिंग। मुझे ये चाहिए कि जिसकी जीमेल आईडी ये हो p@gm और कंट्री सिटी कराची हो। मुझे ऐसा बंदा चाहिए। ठीक है, कैसे लिखना है बोलो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, STUDENT, स्टूडेंट से उठाया। वेयर सिटी इक्वल टू कराची एंड कंट्री ईमेल। ठीक है, ईमेल इक्वल टू, ईमेल क्या चाहिए? p@gm। यहां पर एक बंदा मिल गया, अब्दुल, कराची से है, जीमेल ये है उसकी। अगर मैं इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ करूं, यहां पर मैं पूछूं d@gm, क्या मुझे कोई रिकॉर्ड मिलेगा? सिटी कराची है और ईमेल ये है। एंटर। इफ वी जस्ट हिट एंटर, नो रिकॉर्ड। मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी सिटी कराची हो और ईमेल ये हो। ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता मेरे टेबल में। सो ये है, दोनों अगर ट्रू हुए तभी काम होगा। सिटी भी चाहिए, कंट्री भी चाहिए, मतलब सिटी भी चाहिए और ईमेल भी चाहिए। यहाँ पर एंड लिखते जाओगे उतना ही कॉम्प्लेक्स करते जा सकते हैं। दोनों ही ट्रू होने चाहिए जब भी आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर मैं यही सवाल इससे पूछूं, अगर मैं और से पूछूं, यहां पर मैं इसको और कर दूं, अभी मुझे कोई रिकॉर्ड मिलेगा? मिलेगा। ये अब्दुल मिल जाएगा। सब मिल गए। क्यों? सिटी कराची वाला मिल गया, सिटी कराची वाला मिल गया। ईमेल d@gm वाले जो भी थे वो मिल गए। मतलब और या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो। अगर हम पूरे रिकॉर्ड को पढ़ें, ओके, सिटी कराची, पहले रिकॉर्ड की सिटी कराची है नहीं है, ये फॉल्स। बट इसका ईमेल d@gm है, तो पास। दूसरा वाला रिकॉर्ड, सिटी कराची है नहीं है, लेकिन ईमेल ये वाला है। तीसरे वाला, ऐसे ही पूरे मैच करे तो इसका ईमेल मैच नहीं हुआ बट इसकी सिटी मैच हो गई।
तो इसमें और कोई भी एक रिकॉर्ड मैच हुआ बोल तो अपने को रिकॉर्ड मिलेगा। और कोई एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम बोल सकते हैं, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनकी सिटी बैंगलोर हो, कंट्री इंडिया हो, सिटी बैंगलोर हो, कंट्री इंडिया हो। यहां पर करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, जिसकी वेयर सिटी इक्वल टू BNG और कंट्री इंडिया। अभी कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे? अगर ऊपर सर्च करें तो सिटी बैंगलोर वाले कितने हैं? ये है, ये है, ठीक है। और कंट्री इंडिया वाले दो ऊपर वाले आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, ठीक है। बहुत रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं। एंटर। सो जिनकी कंट्री इंडिया है सभी आ गए। ये पाकिस्तान वाला क्यों है भाई? क्योंकि इसकी सिटी बैंगलोर है। दोनों में से एक भी मैच हो बोल तो सब आ जाएंगे। अगर मैं इसको एंड कर दूं तो रेयरली आई थिंक वन रिकॉर्ड भी मुश्किल से मिलेगा अपने को, एक ही मिल लेना चाहिए। अगर मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ पर और की जगह पे एंड कर दूं, और की जगह पे एंड कर दूं, तो मुझे एक बंदा मिला जिसकी सिटी बैंगलोर है, कंट्री इंडिया है, बात खत्म। सो इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड कंडीशन है और कंडीशन है, इनको बोलते हैं कंडीशंस। ठीक है, समझ में आया? तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। ठीक है, अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करते हैं एक बार, बिना किसी कंडीशन के। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेमीकोलन डाला, एंटर मारा, सभी स्टूडेंट्स मिल गए। अभी मुझे ये स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे ये बताओ, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी आईडी 23 से बड़ी हो, जिनकी आईडी 23 से बड़ी हो, 300 से छोटी हो। आई नीड द स्टूडेंट्स हुज आईडी इज ग्रेटर देन 23, लेस देन 300। समझे? सो लेट्स राइट सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है? स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से सेलेक्ट करना है। वेयर, WHERE, वेयर आईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 23, 23 के बराबर या उससे बड़ी हो, एंड आईडी लेस देन 300, लेस देन और इक्वल टू 300। मतलब मुझे कितने रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए लॉजिकली? 23 अब्दुल मिलना चाहिए, साइनी मिलनी चाहिए, नाइना ये मिलना चाहिए, और ये बंदा मिलना चाहिए। 4 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए। 4 रिकॉर्ड्स मिल गए, 1 2 3 4, जो रिकॉर्ड थे वो मिले। ये है एक तरीका, वी कैन राइट दिस वे। अगर मैं बोलूं कि ठीक है आईडी 23 से बड़ी हो, 23 ना हो, ये वाली आईडी 300 से छोटी हो, 300 ना हो, तो हमें सिर्फ क्या चेंज करना है? हमें सिर्फ ये इज इक्वल टू सिंबल हटाना है। अभी हमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे क्योंकि इज इक्वल टू की कंडीशन फेल कर दी हमने। अभी हमें कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? 2 रिकॉर्ड्स। इसकी आईडी 23 से बड़ी है और 300 से छोटी है, इसकी आईडी भी 23 से बड़ी है, 300 से छोटी है। ये है आम जिंदगी, नॉर्मल पीपल ऐसे लिखते हैं, बट हम कुछ स्पेशल लिखते हैं। ऑपरेटर का नाम है बिटवीन ऑपरेटर। क्या नाम है? बिटवीन। मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स बिटवीन, ओके एक सेकेंड, ओके फर्स्ट वी नीड टू सेट राइट, क्या चाहिए हमें? वेयर आईडी, आईडी बिटवीन, किसके बिटवीन चाहिए? 23 एंड 300। मतलब सिंपल इंग्लिश है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, आईडी इज बिटवीन 23 और 300 के बीच में आईडी होनी चाहिए। बिटवीन की स्पेलिंग रॉन्ग है शायद, आई होप रॉन्ग है। ओके बिटवीन की स्पेलिंग क्या है? BETWWN, बिटवीन, एंटर। ओके स्टूडेंट्स, स्पेलिंग रॉन्ग है, वी नीड टू चेक आउट द स्पेलिंग्स। STUDENTS राइट। तो 23 से 300 के बीच वाले स्टूडेंट्स मुझे मिल गए ना। क्या तो मैं ऐसे लिख लूं या फिर मैं ऐसे लिख लूं, चॉइस इज योर्स। यहाँ पर आईडी ग्रेटर देन लिखनी है, आईडी ग्रेटर देन लिखनी है, यहाँ पर सिर्फ एक बिटवीन कीवर्ड लिखना है और काम खत्म। किसके बीच में चाहिए वो सब लिखना है। ओके ठीक है, अभी मुझे ये चाहिए कि यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करते हैं एक बार, कहाँ गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी मुझे इनमें से क्या चाहिए? मुझे इनमें से वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी आईडी 23 हो, 90 हो और 99 हो। 3 आईडी चाहिए, 23, 90, 99। मुझे सिर्फ 3 आईडी वाले बंदे चाहिए, या फिर बदल लो, 23 चाहिए, 99 चाहिए, 400 चाहिए। कौन सी आईडी चाहिए मुझे?
23 चाहिए, 99 चाहिए, 400 चाहिए। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट करो, सेलेक्ट की स्पेलिंग SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल टू 23 हो, और या फिर ID इज इक्वल टू 99 हो, और या फिर ID इक्वल टू 400 हो। कितने रिकॉर्ड मिलने चाहिए मुझे? 3 रिकॉर्ड मिलेंगे। वेरी गुड। तो ये है आम जिंदगी। इसको भी हम इजी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बोलूं ये 7 रिकॉर्ड है, मेरे पास 70 रिकॉर्ड होते, मानो 70 रिकॉर्ड होते, मैं पूछता मुझे 2 की आईडी चाहिए, 4 की आईडी चाहिए, 7 की आईडी चाहिए, ये सब रिकॉर्ड चाहिए, मतलब यहाँ पर तुम लिखते जाते और ID 23, ID 68, बहुत मुश्किल है ना। सो इसका सिंपल वर्जन है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर ID इन, मतलब इनके बीच में हो, मतलब इनमें से एक, कोई भी एक हो चलेगा, ठीक है। सेम रिकॉर्ड्स। यहां पर इसने क्या बोला? ID या तो 23 हो, या 99 हो, या 400 हो, कुछ भी। यहां पर भी मैंने सेम बोला, या फिर ID इनमें से कुछ भी हो, चले, मेरे को चाहिए आंसर। अगर मैं यहाँ पर बढ़ाते जाऊं तो यहाँ पर मेरे को IDs मिलते जाएंगे। 400 के बाद मेरे को अगर यहाँ पर कभी जरूरत पड़ेगी 300 भी चाहिए तो 300 भी मिल जाएगा मेरे को। 5 रिकॉर्ड्स हो गए, 300 भी आ गया अभी, ठीक है। समझ में आया ये वाला? मतलब ये जो है और की जैसा ही इन ऑपरेटर है, और एंड के जैसा ही बिटवीन ऑपरेटर है। ये एंड के जैसा बिटवीन ऑपरेटर ऊपर है अपने पास जो है, ये एंड वाला है, इज इक्वल टू इसका बिटवीन ऑपरेटर है, जैसा ये और का ऑपरेटर है इसका इज इक्वल टू इन ऑपरेटर है, मतलब इनमें से, ठीक है। या फिर इधर भी यही बोलते हैं ना, इनमें से ID कोई भी हो मेरे को आंसर चाहिए, इनमें से कोई भी हो आंसर चाहिए, इनके बीच में कुछ भी हो मुझे आंसर चाहिए, यहां पर भी मतलब इनके बीच में जो भी हो मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया शायद? ठीक है। सो विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट अस सी समथिंग अबाउट लिमिट ऑपरेटर। ओके, अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करूं, कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं भाई? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? 7 रिकॉर्ड्स। बट मेरी मैनेजमेंट पूछी मुझे टॉप के 3 रिकॉर्ड या 4 रिकॉर्ड ही चाहिए, नीचे वाले नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है मेरे को। तो उन्होंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से सेलेक्ट करो, लिमिट कर दो, कितने भाई? तुझे 4 चाहिए तो 4 ले लो। ओके, स्टूडेंट, इट्स स्टूडेंट्स राइट, स्टूडेंट्स में से 4 रिकॉर्ड मुझे दे दो। पहले 4 रिकॉर्ड आ गए, खुश। ये पहले 4 रिकॉर्ड है, यही पहले 4 रिकॉर्ड यहाँ पर है, ठीक है। इसको बोलते हैं लिमिट। लेकिन मेरी मैनेजमेंट बोली ठीक है मेरे को लिमिट 4 दो, 4 रिकॉर्ड दो, लेकिन ऊपर वाले 2 रिकॉर्ड नहीं चाहिए। क्या बोले? कि 4 रिकॉर्ड चाहिए, ऊपर वाले 2 नहीं चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले 2 को छोड़ के 23, 90, 90 ये वाले दे दो। आई नीड टॉप 4 रिकॉर्ड्स बट आई डोंट नीड फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स। सो हाउ वी कैन डू दैट? कैसे करना है बोलते? सेलेक्ट करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से सेलेक्ट स्टार किया, लिमिट है 4, लिमिट है 4, 4 रिकॉर्ड चाहिए। ऑफसेट कितने छोड़ने हैं भाई? 2 छोड़ने ऊपर के, एंटर। ओके, स्टूडेंट्स, आई यूजुअली मेक दिस मिस्टेक। ओके, स्टूडेंट से 4 की लिमिट है, ऑफसेट में 2 चाहिए, एंटर। ये देखो 23, 90, 99 और 300 आ गया। यहां से देखो 23, 90, 99, 300 आ गया, ऊपर वाले 2 गए, ठीक है। मुझे ये सब मिल गए। सो यहां पर अगर मैं इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करूं बिना कोई लिमिट विमिट के, सो यहां पर ये है असेंडिंग ऑर्डर में। आईडीज देखो 1 है, 5 है, 23 है, 90 है, 99 है, 300 है, 400 है, असेंडिंग ऑर्डर है ना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है। सो यूजुअली हमें असेंडिंग ऑर्डर अगर करना है, ये तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर मान लो ये आईडीज उल्टी पुल्टी होती, 23 नीचे होता, 90 ऊपर होता, तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करना है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऑर्डर बाई, मतलब किस चीज से ऑर्डर बाई करो? आईडी से ऑर्डर बाई कर दो। बाय डिफॉल्ट सेम रिकॉर्ड्स आएंगे क्योंकि सेम ऑर्डर है। मान लो मुझे उल्टा चाहिए,
मुझे क्या चाहिए, आईडी से चाहिए, लेकिन आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मेरे को। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC लिखो, एंटर करो। ये देखो 400 से स्टार्ट हो गए। ASC मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, कोई भी बाय डिफॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग करते हैं। अगर मान लो तुम्हें स्पेसिफाई करना है DESC नहीं सर ASC करना है मुझे, ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर, सीधा ऑर्डर आ गया। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर का है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का है। कौन से कॉलम के बेस पे हमने ऑर्डर किए हैं, आईडी बेस के ऊपर। ओके, आईडी बेस के ऊपर हमने कॉलम्स को चेंज कर दिया। बट यहाँ पर देखो रोहन है, बबलू है, अब्दुल है, मुझे सर आईडी बेस पे नहीं चाहिए, नाम के ऊपर इनको ऑर्डर करके दिखाओ जब माने। सो नाम के बेस पे ऑर्डर करना मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये तो याद होगा सबसे इजी, सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर स्पेस बाय नेम, नाम के बेस पे ऑर्डर कर दो। अभी देखो अब्दुल A से, B से बबलू, M फॉर मोहन, R से राज, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए A to Z। सर हमें तो उल्टे चाहिए, पहले Z आना चाहिए, फिर S आना चाहिए, फिर R आना चाहिए। सिंपल, यहां पर DESC लिख दो, DESC, ये लो Z से लेकर A तक आ गए। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर बाय क्लास। किसी भी चीज में हमें ऑर्डर करना है उसको, ऑर्डर बाय सिटी कर सकते हो, ऑर्डर बाय फोन नंबर कर सकते हो, ऑर्डर बाय ईमेल कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर बाय क्लास। ओके, सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग, that is like operator, that is like operator. So before moving to the like operator, I need to explain you something in the notepad. Okay, let us go with the notepad. I'll just explain one thing about the like operator, then we can start with the like operator. Okay, so let us understand about like operator. Okay, let us understand about like operator in database. लाइक ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। सो लाइक ऑपरेटर एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है ऐसी। इसमें लाइक ऑपरेटर जानने से पहले तुम्हें जानने चाहिए दो इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो परसेंटेज, दूसरा अंडरस्कोर। ठीक है, दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ओके, ये अगर जानने हैं तो परसेंटेज को बोलते हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स, 1 0 और मल्टीपल, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, और यहां पर बोलते हैं अंडरस्कोर मतलब 1 कैरेक्टर, ओनली 1। ठीक है, अंडरस्कोर मतलब ओनली 1 कैरेक्टर कैन बी कम हियर। इट इज लाइक आई थिंक इफ यू हैव गॉन विद पाइथन, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशंस। हैव यू हर्ड दिस, रेगुलर एक्सप्रेशंस, सुना है नाम, नहीं सुना? रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब मुझे पूरे में से, मतलब पूरी टेबल मान लो, इधर यहां पर टेबल है पूरी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो, उसके बाद कुछ भी आओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं परसेंटेज लिखूंगा उसके बाद कुछ भी आओ ले लेगा। अगर मैं बोलूं ऐसे नाम चाहिए जिनका सेकंड कैरेक्टर, सेकंड लेटर बी हो, तो मैं पहले एक अंडरस्कोर लगाऊंगा, यहाँ पर एक कैरेक्टर आना चाहिए, उसके बाद बी आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब परसेंटेज आना चाहिए। इनको बोलते पैटर्न मैचिंग, क्या बोलते हैं इनको, पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग। ओके, इनको क्या बोलते हैं, पैटर्न मैचिंग बोलते हैं। यहां पर मुझे पैटर्न डिफाइन करना है कि कैसा होना चाहिए मेरा रिकॉर्ड, उसकी वजह से मुझे मिलता है। यहां पर इंपॉर्टेंट दो कैरेक्टर्स है सिर्फ, एक है अपना परसेंटेज, दूसरा है अंडरस्कोर। ये मतलब सिंगल कैरेक्टर, इट कैन बी मल्टीपल कैरेक्टर, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो नाउ लेट मी जस्ट शो यू in the real time how we use it. Okay, so let us go back to our MySQL command prompt. Here what we'll do, we'll just find out, my question is select start from students. Before that let us go, I want to get these two records. It is order by name, right? Order by name, descending order. Okay, and limit 4. See, the table is descending now and 4 units. I will just offset 2 and I will ask limit 2, means 1 and 300 should come. मतलब तुमने क्या पूछा, ऑर्डर बाय नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, मतलब जेड से नाम स्टार्ट होना चाहिए, ऊपर वाले दो नाम छोड़ दो, बाकी के दो नाम मुझे दिखाओ, मतलब नाम आना चाहिए रोहन और राजकुमार। ठीक है,
सो यहाँ पर मैंने सेम कमांड को लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करो, ऑर्डर बाय नेम, डिसेंडिंग ऑर्डर, नाम ए से जेड से था, जेड से ए तक हो गया। अभी लिमिट क्या बोले तुमने, 4 नेम दिखाने, लेकिन मुझे 4 नहीं दिखाने, मुझे 2 नाम ही दिखाने, ऊपर वाले 2 छोड़ के, ऑफसेट 2, मतलब मुझे जुबेर और साइनी नहीं चाहिए, मुझे रोहन और राजकुमार मिलने चाहिए लॉजिकली, ठीक है। एंटर मारूंगा तो रोहन और राजकुमार मिल गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग। मैंने इसको कंबाइन किया, लिमिट को कंबाइन किया, ऑफसेट को भी मिला दिया, ठीक है। नाउ लेट अस गो विद दी लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर के साथ चलते हैं। यहां पर मैं थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने 2 बताया ना लाइक ऑपरेटर में, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। परसेंटेज मतलब कितने भी कैरेक्टर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्कोर मतलब एक तो होना ही चाहिए। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग देखते हैं अपने स्टूडेंट्स में क्या क्या है। अच्छा, मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनकी स्टार्टिंग नाम में, या फिर नहीं है यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा यार, हाँ मेल्स में करते हैं, ठीक है। आई नीड ओनली द ईमेल्स विच स्टार्ट्स विद पी कैरेक्टर। क्वेश्चन समझ में आया? मुझे ऐसे मेल वाले रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी ईमेल हो जिनका फर्स्ट कैरेक्टर पी हो, बस। बाकी कैरेक्टर्स कुछ भी हो मुझे पता नहीं है, लेकिन पहला कैरेक्टर पी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लाइक, स्टूडेंट्स, वेरी गुड, स्टूडेंट्स वेयर, क्या चेक करना है मुझे, ईमेल लाइक, कैसे होनी चाहिए ईमेल, पहला तो कैरेक्टर पी होना चाहिए, बाकी का कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो मतलब परसेंटेज हो सकती है, परसेंटेज मतलब कितने भी कैरेक्टर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एंटर किया तो मुझे ऐसे स्टूडेंट मिल गए जिनका फर्स्ट कैरेक्टर पी है और लास्ट कैरेक्टर, ओके फर्स्ट कैरेक्टर पी है, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम यहां पर पूछते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनकी सिटी का सेकेंड कैरेक्टर वाई हो। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनकी सिटी का सेकेंड कैरेक्टर वाई हो, मतलब ये वाले चाहिए मुझे, ओके। कैसे करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से सेलेक्ट किया, वेयर सिटी लाइक, मतलब सिटी कैसी होनी चाहिए, एक पैटर्न बताओ, पहला कैरेक्टर तो कुछ भी हो, दूसरा कैरेक्टर वाई हो, बस। तीसरा वाला परसेंटेज जरूरी है, क्योंकि आगे हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम यहां पर करोगे तो 2 कैरेक्टर की होगी तभी आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ओके। यहां पर मैंने किया एंटर, मतलब जिनकी भी सिटी का सेकंड कैरेक्टर वाई है वो सब मिल गए। नेक्स्ट, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनकी सिटी का आखिरी लेटर आई हो, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनकी सिटी का आखिरी लेटर आई हो। इसको वापस उठाओ, सिर्फ पैटर्न को चेंज करो, यहां पर पहले आगे कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर लास्ट कैरेक्टर आई मिले। सो मुझे 2 स्टूडेंट्स मिलेंगे, कराची और दिल्ली, लास्ट कैरेक्टर आई हुआ ना, राइट। अगर नाम में कुछ सिमिलैरिटीज मैं ढूंढूं तो ठीक है, मिल गई। मुझे ऐसा बंदे नाम वाले चाहिए जिनका फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर ओ होना चाहिए, बाकी के कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, सेकंड कैरेक्टर नाम में ओ होना चाहिए। कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक, पैटर्न बताओ, पहला तो एक खाली होना चाहिए, एक कैरेक्टर कुछ भी हो, दूसरा कैरेक्टर ओ हो, तीसरे के बाद परसेंटेज हो, मुझे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे। सेकंड कैरेक्टर ओ मिला, ओ मिला, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइक ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आवर फंक्शनल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, ओके। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, imagine this is the salary of the students, okay, not the id, imagine this is the salary now, ठीक है। एक बार इमेजिन कीजिए कि ये आईडी नहीं सैलरीज है, मुझे टोटल सैलरी काउंट करनी है इन स्टूडेंट्स की। व्हाट आई वांट टोटल सैलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स की टोटल सैलरी या फिर टोटल इनकम मान लो, कुछ भी,
तो टोटल इनकम थोड़े बच्चे क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे 1 + 5 + 23 + 19 + 99 + 300 + 400। लॉजिकली नॉट। अभी तो 7 रिकॉर्ड है, अगर 700 होते तो ऐड करते नहीं। हमारे पास फंक्शंस दिए हुए हैं मैथ के। कैसे? सेलेक्ट करो, सम करना है किसका, आईडी का, आईडी का सम करना है। कहां से भाई? स्टूडेंट से। ये देखो सम 918 हो गया। यहाँ पर सम आईडी नहीं दिखना चाहिए, कुछ अच्छा नाम दिखना चाहिए। सो हम यहाँ पर इसको पेट नेम देते हैं, इसको सम आईडी एज क्या नाम से भाई, इसको बोलते हैं टोटल इनकम। ठीक है, एक टोटल इनकम नाम से कॉलम बनाया। अभी अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो टोटल इनकम नाम से कॉलम है, उसमें 918 इनकम बन गई। ओके, अभी तो सम हो गया, मुझे एवरेज करना है इनका। सिंपल, इसको लेके आओ, टोटल इनकम को बदलो, यहाँ पर एवरेज लिख दो, सिर्फ एवीजी लिख दो भी चलेगा, अपनी मर्जी है, अपने नाम है एवीजी एवरेज। द फंक्शन फॉर सम, द एवरेज फंक्शन इज एवीजी ओनली, एवीजी। एवरेज कर दो आईडी का, मतलब आईडी एक नंबर है तो उनको 131 इसका एवरेज है, मतलब सबको ऐड करके 918 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 131 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मान लो अभी तो अपने पास रिकॉर्ड दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, रिकॉर्ड दिख रहे हैं, मुझे काउंट करने हैं, मुझे काउंट करने हैं स्टूडेंट्स जो हैदराबाद सिटी से है। क्या है क्वेश्चन है, मुझे सभी स्टूडेंट्स का काउंट चाहिए जो भी हैदराबाद सिटी से हो। तो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट काउंट ऑफ सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इक्वल टू HYD। HYD कैपिटल है ना, स्मॉल है HYD। तीन तीन स्टूडेंट्स है जो जिनकी सिटी हैदराबाद है। मुझे मान लो अगर मैं ये वेयर कंडीशन नहीं लिखूं तो सबकी सिटी मिल जाएंगे, मतलब टोटल रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे मुझे। अगर वेयर कंडीशन यहाँ पर ना हो, 7 रिकॉर्ड्स मिले, मतलब 7 स्टूडेंट्स है जिनकी सिटी है। यूजुअली ये सभी रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी मुझे जानना है कि मिनिमम सैलरी कितनी है और मैक्सिमम सैलरी कितनी है। मिन और मैक्स फंक्शन यूज करना है। सिंपल, काउंट ऑफ सिटी हटाओ, यहाँ पर मिन लिखो, मिन आईडी, मतलब मिनिमम आईडी क्या है भाई, एक है। अगर मैक्सिमम आईडी चाहिए बोलता हूं मैक्स। ओके, ये है मैक्स 400। अभी मुझे क्वेश्चन है, आईडी 1 है उसका नाम चाहिए मेरे को, मुझे आईडी 1 है उसका नाम चाहिए, और आईडी 4 है उसका नाम, 400 है उसका नाम चाहिए। बता सकते हो? कैन यू टेल मी हाउ टू राइट दिस क्वेरी? जिसकी भी आईडी मिनिमम हो उसका मुझे नाम चाहिए। तो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट, नहीं सेलेक्ट नेम, नाम सेलेक्ट करना है ना, फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से सेलेक्ट करना है, वेयर कंडीशन क्या है भाई, 5 मिनट्स, वेयर कंडीशन इज नॉट मिनिमम। आईडी मिनिमम यू कैन राइट 1, बट इफ यू डोंट नो व्हाट इज 1 देन यू नीड टू फाइंड आउट विद द क्वेरी। यहां पर फिर से क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, ओके नॉट आईडी, सेलेक्ट min of id, ओके फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो मुझे आंसर आंसर क्या मिलेगा, मिनिमम ऑफ आईडी इज 1 इफ इट इज इक्वल विद द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। यहां पर इसको कॉलन से एंड किया, स्टूडेंट्स की, विद स्टूडेंट्स, students, enter। okay, we have something more, select name from the students, students, select min। okay, we need to use min correctly, not min। या तो छोटा लिखो या बड़ा लिखो। okay, okay, where is the error? select name from students where, select min of id from students, select name from students where id equal to, select min of id, we'll just type again, select name from students, okay, where
select min of id from students is equal to आता आता select name from students where id नहीं लिखे ना अपन, id नहीं लिखे, where किसको मैच करना है, id नहीं लिखे यहाँ पर, id इज इक्वल टू दिस, नाम है रोहन, ये है min id, इसको बोलते हैं सब क्वेरीज और इनर क्वेरीज। ओके, ये कॉन्सेप्ट है सब क्वेरीज, वेरी लॉन्ग कॉन्सेप्ट बट आई एम जस्ट रैपिंग ऑफ विद दिस ओनली। ठीक है, यहाँ पर सब क्वेरीज है। यहाँ पर फाइनली हम क्या करते हैं, अभी जो भी अपने पास डेटा है उसको लास्ट क्वेरी बताता हूँ, दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन कंप्लीशन। नेक्स्ट लेट अस जस्ट राइट मैक्सिमम, जिसका भी मैक्सिमम था उसका भी नाम लिख लेते हैं। मैक्सिमम वाले का नाम क्या था, max, अगर मैं लिखूं मैक्सिमम वाले का नाम जुबेर था। अगर तुम इसको नॉर्मल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करना चाहो तो चेक कर सकते हो। मिनिमम वाले का नाम रोहन है, मैक्सिमम वाले का नाम जुबेर है। ठीक है, सो नाउ लास्ट थिंग इज आई वांट टू रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम माय टेबल। डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल आई कैन डू, और एल्स ट्रंकेट आई कैन यूज, और एल्स द कमांड इज ट्रंकेट, मतलब काट दो, ट्रंकेट कर दो टेबल को। ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम किसको काटना है, स्टूडेंट्स को, खत्म। अगर मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया मतलब पूरा डेटा खत्म। ट्रंकेट, वही TRUNCATE, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। okay, now if I just select star from students, no records. Okay, it's empty now. So this is called truncate table. I want to delete the tables, I just want show tables, show tables, एक टेबल है, drop drop टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम क्या है भाई, स्टूडेंट्स, STUDENTS, table dropped. Now if I just want show tables, no table. If I just want again मुझे डेटाबेस देखना है, show databases, learn है ना, drop database learn, पूरा सीख लिया, ड्रॉप कर दिया। अभी शो डेटाबेसेस करें, अपने बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस मिल जाएंगे, डेटाबेसेस। ओके, so this is the MySQL tutorial considering all the things. Just few things like inner joins, queries, subqueries are left. All other things have been covered in this tutorial. Thank you for watching the video. Thank you.